Okay. So another thing is after that we went through the syntax of some polynomials, some polynomial functions. Okay. So to write some polynomial function, there are two ways to write a polynomial function. Either you will be given a कहाँ है ये अब क्यों आ रहे हैं okay so either you would be given a coefficient or you would be given a root ठीक है तो जो polynomial function होती है आपके पास कोई भी polynomial function ग्रुप लैब 2 वालों को मैंने बता दिया था ये तो जो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास होती है तो आपके पास या तो कोएफिशिएंट्स दिए होंगे कोएफिशिएंट मींस आपके पास मतलब ना वेरिएबल के साथ आपके साथ अटैच क्या है ठीक है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट तो या तो आपको कोएफिशिएंट्स दिए होंगे या आपको रूट्स दिए होंगे तो आपको उन on the basis of that coefficients or on the basis of that roots you can draw a polynomial function so we have a syntax of a polynomial function here. Okay, so like this we have a polynomial function p1 is equivalent to syntax is like this poly poly -1 and 2 for example we are given two roots of polynomial function like x1 let's assume that x1 is -1 and x2 is 2 ठीक है उसके बाद x what this x is इसमें हमारे पास we have three suppose these are three arguments ठीक है तो one argument यहाँ तक आता है हमारा पहले कॉमा तक -1 and 2 this is called the data ठीक है so data आपको you will this data will be defined here जो r लिखा है ना मैंने यहाँ पे तो ये data यहाँ पे define होता है कि ये data क्या है r signifies that this data is it is these are roots अगर हमारे पास coefficients दिए होंगे अगर on the basis of coefficients आपको एक polynomial function draw करानी है तो there you will write here and in place of -1 and 2 you will write coefficients जो आपके coefficients होंगे and at the place of r you will write c ठीक है c stands for coefficients so here आपको दिया हुआ है -1 and 2 are the two roots of a polynomial function and the second one is called a variable आप इसमें क्या variable use कर रहे हो ठीक है you can use x or you can use y or you can use any variable ठीक है so after typing this will create a polynomial function p1 ठीक है y square ये वाला जो राइट साइड में यहाँ पे दिस इज कॉल्ड y square minus y minus 2 ठीक है this is a polynomial function so you can find its roots on your rough notebook and you can see or you can compare the results between the two okay so उसके बाद मैंने आपको एक और फंक्शन भी दिखाई थी polynomial function this now if I am creating another polynomial p2 poly syntax is poly poly okay उसके बाद 3 -3 -8 and 7 these are the coefficients of the polynomial after that x is what we call as x हम यहाँ पे भी y ही रखना था मैं चलो छोड़ो अब तो हमें x is the type of variable and c is options हम इसको options बोलते हैं options में हमारे पास coefficients है ठीक है तो options में हमारे पास coefficient we are using coefficients this time we are not using roots this time so we have drawn a polynomial function 7x cube ठीक है तो ये वाला जो है this is a3 a2 a1 and a0 3 is a0 -3 is a1 -8 is a2 and 7 is a3 ठीक है तो in that order you can write these things okay so you can also find it
जैसे आपको मैंने बताया था टाइप ऑफ आंसर, आंसर क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने सी कुछ टाइप किया है, सपोज P1 हमारा है, तो P1 इज दिस पॉलिनोमियल। सो अगर हमें फाइंड करना होगा कि इसका टाइप क्या है, जैसे हमारे पास टाइप होता है ना, वेरिएबल है, या हमारे पास इंटीजर है, या हमारे पास रैशनल नंबर है, एंड अदर अदर नंबर्स, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एटसेट्रा, जो हमारे पास डेटा, नहीं सॉरी, वो डेटा टाइप्स है, और ये हमारे नंबर्स है, जैसे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, या हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, या हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं, या हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम देख सकते हैं टाइप ऑफ आंसर इज इक्वल टू स्ट्रिंग, व्हाट इज दिस, एक सेकंड सॉरी, इसमें कुछ रिजल्ट, ये कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर हुआ है शायद। P1 इज ए, अच्छा आंसर इज स्ट्रिंग, ठीक, ओके ओके, CLEAR, पहले हम, we will clear this memory first. To clear this memory, the command is CLEAR clear, okay. तो you can see the right side जो से जो हमारा variable browser है, ये हमारा clear हो गया। To clear the screen, you can use the command CLC, okay. तो इससे हमारा screen clear हो जाता है, okay. Okay. So you can write, अगर हम यहाँ पे रखेंगे polynomial P1 is equal to this, उसके बाद polynomial P2, we can interchange x by y, so we can write P1 plus P2, तो we can add these two polynomials, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो आंसर आया, we can check what is its type by this command type of answer, तो ये हमारा आया polynomial, ठीक है, ठीक है। इसी तरह you can write P1 divided by P2, ये आ गया आपका डिवीजन, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था पिछली लैब जिन्होंने दी होगी, दैट इट विल बी अ रैशनल नंबर, ओके, टाइप ऑफ आंसर इज इक्वल टू रैशनल, ओके। सो ये है हमारा ये वाला पोर्शन जो पिछली लैब में नहीं थे, मतलब हाँ, जिन्होंने पिछली लैब नहीं की थी। उसके बाद है हमारा we will move towards loops, ठीक है, लूपिंग एंड ब्रांचिंग इसमें कैसे होती है, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी अगर होगी तो he or she can post it down in the comment section। तो हम इसमें जो हमारा सिंटैक्स है ना इसका, रूट्स, सॉरी, लूप्स का, दिस इज लाइक सिंपल, जैसे हम सी में लिखते हैं, या आप किसी और लैंग्वेज में पाइथन में लिखते हैं, या मैटलैब में लिखते हैं, दिस इज सिमिलर, ठीक है, ओके। लाइक यहाँ पे है कोई फंक्शन की नहीं, ओके नहीं है, सो आई विल राइट डाउन, ओके। लाइक हमारे पास अगर होगा इफ, सपोज I will write x is equal to 10, ठीक है। तो इसके बाद I will write a simple if else statement, ठीक है। If x is equal to 10, क्या होगा फिर, then, ठीक है। तो डिस्प्ले कराने के लिए we write disp डिस्प्ले hello, ठीक है। else we can display, तो मुझे असल में सिंटैक्स दिखाना आपको, दिखाना है आपको कैसे काम कर रहा है, ठीक है। गुड बाय, फिर हम लिखते हैं एंड, एंड
अच्छा सॉरी, x इज इक्वल टू, इट इज if x is equal to 10, ठीक है, कंडीशनल है ना, देन बाकी सारा सेम है, ठीक है। यहाँ डिस्प्ले गुड बाय कराएंगे, उसके बाद एल्स डिस्प्ले हेलो, ओके एंड, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 10, दिस इज लाइक सिंटेक्स ऐसे इफ देन, ठीक है, साथ में इफ देन, ठीक है। अगर x 10 के बराबर है तो डिस्प्ले गुड बाय कराएगा, एल्स डिस्प्ले हेलो, ठीक है। आई विल शो यू दिस यूजिंग ए सिंपल प्रोग्राम, जैसे हम इवन ऑड का करते हैं ना, देखो वी कैन राइट इफ, इसमें एक सिंटेक्स आपको आ जाएगा इसका भी, हमने x 10 के बराबर पहले ही ये किया है इक्वेट, x इज इक्वल टू 10, ठीक। तो इसमें मॉडुलस की जगह हम मॉडुलस का सिंटेक्स ऐसे MODULULL मॉडुलो, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं x मॉडुलो 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक। देन डिस्प्ले नंबर इज ऑड नहीं इवन, ठीक है। अगर मॉडुलो डिवीजन पता है ना सबको, मॉडुलस डिवीजन रिमाइंडर, it it will uh, it will check whether its remainder is 0 or not, and if the remainder is 0 then the number is even, and if the remainder is not 0 then number is odd। else जैसे आप सी प्रोग्रामिंग में लिखते हो, ठीक है, else डिस्प्ले नंबर इज odd, तो उसके बाद एंड लिखना जरूरी है, ठीक है, नंबर इज इवन। इसमें किसी को कोई क्वेरी है? सर जी हाँ जी बताइए। हेलो हाँ जी। नहीं है क्वेरी। अच्छा आवाज आ रही है ना सबको? यस सर, यस सर। ओके ओके, सो दिस इज द सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद आपका इफ के बाद आपका फॉर लूप आता है, ठीक है। जैसे आप को अगर कोई सिंपल फंक्शन, सिंपल एक फॉर लूप की एग्जांपल हम देंगे यहाँ पे, सो आई विल कीप इट एज इट इज। आप मे बी आप में से किसी को कॉपी मत करना होगा। तो जैसे आपको एक सिंपल फॉर लूप की एग्जांपल मैं बताऊं, फॉर हम लिखते हैं सीधे फॉर आई इक्वल टू, ठीक, 1 to 5, ठीक है। इट मींस आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो जब देखो जब 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 ये कंपाइलर फॉर देखता है ना पहले ही, तो अगर हम वैसे लिखते हैं ना कोई स्टेटमेंट इसमें a इज इक्वल टू 5, उसके बाद हम एंटर करते हैं, तो उसके बाद सी इसमें सीधे एक ऑटोमेटिक फंक्शन है डिस्प्ले, ऑटोमेटिक डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले लिखने के बगैर भी वो डिस्प्ले हो जाता है। इफ वी विल राइट a इज इक्वल टू 5, देखो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, a इज इक्वल टू 5 में अगर लिखूं यहाँ पे तो ये सीधे ही डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ कि ये डिस्प्ले ना हो तो मैंने आपको बताया था हम ऐसे करते हैं, फिर टर्मिनेटर रखते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू 5, उसके बाद में a लिखता हूँ तो 5 डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप लोगों ने एक चीज एनालाइज किया होगा, व्हेन द कंपाइलर विल सी ना फॉर i इज इक्वल टू 1 to 5, तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले नहीं होगा। इट मींस फॉर एक कीवर्ड है इसमें, ये आइडेंटिफाई करता है इसको, ठीक है। डिस्प्ले आई हम कराएंगे तो इसके बाद भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, जब तक हम एंड ना लिखे।
ठीक है, एंड के बाद ये सारी चीजें, ये सारा लूप जो है, ये फॉर लूप जो है, ये डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ओके। सो दिस इज लाइक जो इंक्रीमेंट है फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5। अगर आप लोग अब चाहते हैं कि यू वांट टू इंक्रीज दिस ना इंक्रीमेंट बाय 2, फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिस्प्ले ओनली 1 3 and 5, ठीक है, फॉर उसके लिए आप लोग क्या करोगे, सीधे यही फॉर आई इज इक्वल आई कोलन 1 कोलन, उसके बाद आप लिखोगे कोलन में वो चीज रखोगे आप। अब इतना लेट ज्वाइन होने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। सो माइंड इट नेक्स्ट टाइम, वी होप कि नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास ना हो, क्योंकि इससे तो कुछ मुझे नहीं लगता है उतना फायदा हुआ होगा आप लोगों को, बट माइंड इट कि नेक्स्ट टाइम से कोई लेट नहीं आएगा, ठीक है। वही आज रोज देरी है मूजुब त्राहो। सो फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई कोलन 1, जो जो फिर आपको रखना होगा स्टेप, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ना स्टेप फंक्शन, जितने स्टेप्स आपको रखने होंगे, जिस स्टेप पे आपको रखना होगा। फॉर एग्जांपल यू वांट टू कीप इट एट स्टेप 2 एंड यू वांट टू डिस्प्ले अप टू 20, ठीक है। उसके बाद यू विल राइट द डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले आई, उसके बाद यू विल राइट एंड, ठीक है। तो यू विल सी द रिजल्ट्स बाय योरसेल्फ। ओके, तो जो आपका जो पहला वाला ग्रुप है ना, जिन्होंने ये पॉलिनोमियल फंक्शंस नहीं की थी, शायद उनको मैंने फॉर लूप में वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन की चीजें दिखाई थी, ठीक है। तो अब जो ग्रुप सेकंड है, जिनको मैंने पिछली लैब में बाकी सारी चीजें पढ़ाई, तो आई होप नाउ दे विल बी एबल टू मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई एंड ऐड थिंग्स एंड एटसेट्रा ना, जो सिंपल सिंपल चीजें आप फॉर लूप से कर सकते हो, जैसे फैक्टोरियल एटसेट्रा। हाँ, जैसे आप फैक्टोरियल ऐसे भी कर सकते हो, आप सीधे फैक्टोरियल 6 कैसे लिखा था हमने, फैक एफ ए सी टी, अच्छा पूरा होगा एफ ए सी टी ओ आर आई एल, पूरा लिखना होगा शायद, हाँ, फैक्टोरियल 6, तो इट विल डिस्प्ले factorial of 6। okay, तो you can find the factorial of 6 using for loop, ठीक है। तो उसके लिए आप loops भी यूज कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इन सब चीजों की। Sir, in any real program, if there are some instructions after the loop, how to write them after end as it will terminate it? Yes, हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो, जैसे मैंने आपको मैट लैब में बताया था ना, पहले एक वर्क स्पेस होता है। इसमें एक मैं अभी आपको सारे जो कमांड्स है, जो सारे जो प्रोग्राम्स है, मैं आपको कंसोल पे दिखा रहा हूँ चीजें। यू माइट हैव नोट्स द थिंग हियर, कंसोल, यहाँ पे कंसोल साइलैब 6.0 कंसोल, ठीक है। तो कंसोल पे चीजें इसलिए कंसोल पे मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आपको आप यूज्ड हो जाओ इससे, आप यूज्ड हो जाओ इससे, इसका सिंटैक्स कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक क्या हम उसके इसको इसको बोलते हैं हम वर्क स्पेस विंडो, एक वर्क स्पेस विंडो भी आती है, ठीक है। जैसे आपने मैटलैब में देखा था ना, एक वर्क स्पेस ऊपर आ जाती है, तो उसमें हम कोड लिखते हैं, फिर उस कोड को हम ऊपर एक बटन होता है ना, एग्जीक्यूशन का बटन, एग्जीक्यूट करते हैं हम उस कोड को, ठीक है। तो इसमें साइलैब आल्सो सपोर्ट्स दैट वेरिएबल फंक्शन, मे बी इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास में वो वेरिएबल विंडो जो होती है, वर्क स्पेस विंडो जो होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो दिखाता हूँ आपको, वर्क स्पेस विंडो में हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप इन इन सब चीजों पे फोकस करो, जो छोटे छोटे चीजें हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ओ, ठीक है। तो सी, नाउ सपोज यू वांट टू प्रिंट बैकवर्ड, अगर आपको बैकवर्ड्स रिजल्ट डिस्प्ले कराना होगा, फॉर फॉर एग्जांपल 1 to 5 आपको डिस्प्ले कराना होगा बैकवर्ड्स, ठीक है। फॉर I is equal to 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5,
I is equal to नहीं, I is equal to 5 पहले, हाँ 5 से 1 तक डिस्प्ले कराना है, ठीक है। एट द स्टेप ऑफ, क्या रखूं मैं एट द स्टेप ऑफ, क्या अप टू 1, कोई बता सकता है मुझे इस स्टेप पे क्या आ जाएगा यहाँ पे? एनीवन, कोई बोल सकता है? सदाम, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, कोई मुझे बता सकता है इस स्टेप पे हम क्या रखें? कोई भी, एनीवन? -1. ओके, गुड। हम यहाँ for I is equal to 5, -1, 1. Okay. So we will display I. Okay. -1. देखिए print backwards. It will print backwards. Okay. Similarly, there is another loop, an important loop that's called while loop. ठीक है? तो while loop का एक छोटा सा सिंटैक्स समझाने के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम है उसमें दिखाऊं। एक सम फंक्शन, ठीक है, फॉर एग्जांपल सम फंक्शन हम उसमें करें, वी विल राइट सम इज इक्वल टू, सम का कोई वेरिएबल तो नहीं है इसमें हमारा अभी, सम नो, ओके, so we can use sum is equal to 0, we will initialize sum equal to 0, then we will initialize I equal to 1, okay, तो इसके बाद हम लिखेंगे while I is less than or equal to 5. Okay, we will display sum from 1 to 5. We want to display sum from 1 to 5. Okay, so we will write sum is equal to sum plus 1 and we will increment I equal to I plus 1. तो I hope इतना सबको आता ही होगा, ठीक है। C, इसमें क्या हो गया? Less than or equal to 5. Oh, sorry. Sum is equal to sum plus I 1 किया मैंने इसमें भी और इसमें भी। Sum is equal to 0, I is equal to 1. Okay. Okay. उसके बाद we will write while loop from 1 to 5. After that we will write sum is equal to sum plus I, और I में जाएगा हमारा I is equal to, I will increase from 1 to 5. Okay, 1, I is equal to I plus 1, I plus 1. Okay, I hope. देखा, this is also case sensitive, huh? Sorry. So while उसके बाद sum is equal to sum plus I, उसके बाद I equal to I plus 1. After that you write and. Okay. So see, 1, 1, 2, देखो
जब when I is equal to 5 sum is equal to 15, ठीक है, उसके बाद ये I का वैल्यू फिर से प्रिंट कराएगा, क्योंकि हमने लिखा ना I is equal to I plus 1 लास्ट पे, तो उसको इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन वो while लूप के अंदर, वो while कंडीशन के अंदर फिर नहीं जाएगा, ठीक है, उसके बाद सम डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, ये समझ आ रहा है ना, इसलिए I is equal to 6 भी डिस्प्ले हुआ, लेकिन I equal to 6 का सम डिस्प्ले नहीं हो पाया, ठीक है, I is equal to 5 का सम डिस्प्ले हुआ, up to 5 we have sum is equal to 15, okay. So there is for example, अब अगर इसमें एक sum function inbuilt भी है, जैसे हम आपको आया ना sum from 1 to 5 is 15, तो you can write like this sum, sorry one second, you can write sum like this, sum 1 to 5, sum 1 to 5, ऐसे क्यों नहीं काम कर रहा है, sum, फिर क्या इंडेक्स था इसका, एक सिंटेक्स है इसमें, सम फंक्शन एक है इसमें इनबिल्ट, बट मुझे याद नहीं पूरा वो कैसे लिखते हैं सम, चलो वी विल फर्स्ट क्लियर ऑल वेरिएबल्स, देन वी विल राइट सम, सपोज यू वांट टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 5, हाँ देखो इसमें कभी आ जाता है गार्बेज इश्यूज या कुछ गार्बेज वैल्यू का इशू आ जाता है, इसलिए कभी काम नहीं करता है, तो देखो यू कैन डायरेक्टली प्रिंट सम फ्रॉम 1 to 5 एज दिस, सम 1 to 5 लिखना है, उसके बाद सीधे आपको जितना भी चाहिए सम 1 to 100, तो सीधे आप डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है, उसके लिए आपको फिर कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस इट वाज फॉर दिस के आपको चीजें समझ आ जानी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? Anybody having any sort of question, he can ask or she can ask, ठीक है, so don't worry. Three. Yes. So these are this, उसके बाद इसमें वो कुछ चीजें हैं, स्विच ब्रेक स्टेटमेंट, वो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो, ठीक, तो एक और छोटा सा सिंटेक्स है, आफ्टर दैट वी विल स्टॉप, ठीक है, एक छोटा सा सिंटेक्स है, एक छोटा सा सिंटेक्स है फंक्शन का, हम फंक्शन इसमें कैसे लिखते हैं, ठीक है, सो वी विल राइट ए सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम, बेसिक कैलकुलेटर प्रोग्राम फंक्शन फॉर एडिंग सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, यू कैन मॉडिफाई इट एंड you can, after that you will have to obviously you will have to submit assignments and also etc, so you can modify that for those purposes, ठीक है, so a simple function we can write like this function, ठीक है, a b c and d, we will write cal x comma y, c कम पहला नोट से डेट, ठीक है, इसका सिंटैक्स देख के फंक्शन है, ठीक है, उसके बाद a is equal to, we will write a is equal to x plus y, ठीक है, y I am passing these 4 variables, ठीक है, तो ये आप लोग देखो a is equal to x plus y, b is equal to x minus y, c is equal to x into y, सिंपल है, बहुत सिंपल है, d is equal to x divided by y, okay, उसके बाद we will write end function, so ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, हमने फंक्शन एक डिफाइन किया, cal फंक्शन, x एंड y, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, 2 पैरामीटर्स हम पास करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद we have written a calculator, simple basic calculator program, ठीक है, उसके बाद now we want to store or display the results in p,
Q R S। ठीक है, हमें फंक्शन को अब डिफाइन करने के बाद, डिक्लेयर डिफाइन इसी में आ गया सारा, उसके बाद हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, CAL, we will pass x and y, we will pass 8 and 4 यहीं से। ठीक है, we will pass we will pass inputs to it 8 and 4। okay, C, we will store the sum in P, the difference in Q, the multiplication in R। C, ये ना एक ऑर्डर में हो जाएगा। C we will store in R and D we will store in S। C, if we need to print P is equal to 12, 8 plus 4 is 12। okay, D is, sorry D नहीं, S is 2, divide 8 by 4, divide 8 divided by 4 is equal to 2। ठीक है, इसी तरह R, R is 32, it is the multiplication of the two numbers। okay, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? और भी बताना था मुझे। हाँ, ये समझ आ गया सबको? समझ आ गया सबको?